Okay, sorry about this. But anyway, okay. So we'll talk about this stuff in today's lecture, and then we'll have a quiz towards the end of the class. The TAs will join in towards the end, and they'll explain you. Uh, they'll explain you the methods and some of the instructions that are related to quiz, right? Okay, so we'll discuss that towards the end, and the TAs will join in. Okay, so let's just start from where we left last time. So I'll just share the screen with you, and Excuse me, sir. बताइए. Sir, sorry to interrupt. Sir, kindly आप क्विज का टाइम बढ़ा सकते हैं सर. 7 मिनट बहुत कम नहीं है. अच्छा चलें उस पर भी बात करते हैं, ठीक है जी. ठीक है सर, थैंक यू. Right. So we'll discuss about quiz towards the later half of the lecture. Okay, so let's just focus on today's discussion. Right. So we were discussing last time the access of variables through pointers, and just to Acha, pointers are not included in today's quiz. Okay, ये बार-बार question आ रहा है, तो I just wanted to make sure कि ये included नहीं है. Okay. Okay. So this is how you can actually define a pointer to a struct. Okay. Remember we defined a struct called point earlier. Okay, and because this is a user defined data type, okay, therefore in case of standard declaration इस पॉइंट के ऊपर आपके पास क्या आता है, इस जगह के ऊपर आप जो है वो टाइप ऑफ पॉइंटर डिफाइन करते हैं. डेटा टाइप क्या है पॉइंटर की, तो अगर वो इंटीजर है तो INT लिख देते हैं. लेकिन इस केस में क्योंकि यूजर डिफाइंड है तो इसलिए INT नहीं आएगा या फ्लोट नहीं आएगा या कुछ और नहीं आएगा. यहाँ पे आपका स्ट्रक्ट का जो नाम है प्राइमरीली वो आएगा. ठीक है, तो point is the name of the struct. So name of the struct comes here, followed by the standard notation जो कि pointer में use होती है static ptr. ptr is the name given to the pointer. Okay, and here p is an instance of this struct. Okay, so what is this saying? This is saying that we have defined a pointer that is of type struct, and the name of that struct is point, and this pointer ptr is pointing to an instance of this struct which is p. Okay, so it actually points to the memory location where this instance of struct is actually placed. Okay, right. अच्छा, सारा जो आपने लिखा है इस वन एंड द सेम थिंग. ठीक है, आप पॉइंट स्टैरिक के बाद स्पेस पीटीआर भी कर सकते हैं और पॉइंट के बाद स्पेस देके स्टैरिक पीटीआर भी कर सकते हैं. इट्स वन एंड द सेम. इसमें कोई फर्क नहीं. ठीक है, यू कैन डू बोथ. ओके, सो this is the syntax. Now this is the main thing that you have to remember here. ठीक है, स्टैरिक पीटीआर आपने उसका डिफाइन करना है. टाइप क्या है? Point, which is a struct. And where is this pointer pointing to? It's actually pointing to an instance of point which is p. Okay, and the rest is the standard notation. ये ampersand sign यहाँ पे आता है. That is the standard notation which you have got. यहाँ पे आपके पास steric notation आती है. ठीक है, और यहाँ पे आपके पास pointer type आ जाएगी और यहाँ पे name of the pointer आ जाएगी. ठीक है, it's a standard sort of a notation that is actually used with the only difference is
कि आपने शुरू में INT या टाइप डिफाइन करने की, स्टैंडर्ड टाइप डिफाइन करने की बजाय यूजर डिफाइन टाइप आपने डिफाइन कर दिया, which is a type of struct. So that is actually the main thing that has to be discussed. सर Yes, yes. सर तो मतलब इसमें लेकिन ये एक पॉइंट होगा ना कि जैसे जो जो स्ट्रक्ट जिसको पॉइंट कर रहा है जिस एक और पॉइंट को समझे, मतलब अगर एक उसके स्ट्रक्ट के 3 हमने वो दिए हुए हैं फीचर्स हैं, तो उसको भी 3 फीचर्स वाला ही होना चाहिए ना जो हम पॉइंटर डिफाइन कर रहे हैं। नहीं, ये स्ट्रक्ट को डिफाइन, ये स्ट्रक्ट के इंस्टेंस को डिफाइन कर रहा है और उस स्ट्रक्ट के इंस्टेंस में जितने भी वेरिएबल्स आपके पास हैं, ठीक है, अच्छा सारे आ जाएंगे। हाँ सारे आ जाएंगे, ठीक है। आप बारी बारी हर एक को एक्सेस कर सकते हैं थ्रू द पॉइंटर। तो लेट्स से ये बिल्कुल ऐसी है कि आप उस पॉइंट को पॉइंट कर रहे हैं जहाँ से स्ट्रक्ट का इंस्टेंस स्टार्ट हो रहा है, उस मेमोरी लोकेशन, और आप उसके बाद जो है वो वेरिएबल्स को उसके अंदर जो डिफाइन किए हुए हैं आपने वेरिएबल्स, उन वेरिएबल्स की मेमोरी लोकेशंस भी ऑटोमेटिकली उसके साथ लिंक्ड अप हों, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ पे डिक्लेरेशन आपने स्ट्रक्ट की इंस्टेंस की है, ये वहाँ पे एक्चुअली पॉइंट कर रहा है, और ऑटोमेटिकली तमाम वेरिएबल्स इसमें जितने आपने डिफाइन किए हैं, जितने फंक्शंस आपने डिफाइन किए हैं, दे विल ऑल बी रिलेटेड टू दिस पॉइंट, ठीक है। और उनको आपने कॉल कैसे करना है ये अभी हम डिस्कस करते हैं, राइट। ओके, सो इट्स आपने हर वेरिएबल डिफाइंड इन द स्ट्रक्ट जो है उसके लिए अलग पॉइंटर आप नहीं बनाएंगे, एक ही पॉइंटर होगा जो पूरे के पूरे स्ट्रक्ट को पॉइंट कर रहा हो, राइट। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, नाउ हाउ डू यू एक्सेस? अब क्वेश्चन ये है कि आपने इंस्टेंस पी को तो आपने पॉइंट कर लिया थ्रू पॉइंटर, लेकिन एक्सेस कैसे करना है? आपने पी के अंदर जो वेरिएबल्स पड़े हुए हैं या जो फंक्शंस पड़े हुए हैं, ठीक है, उनको आपने कैसे एक्सेस करना है? उनको एक्सेस करने के लिए एरो नोटेशन आप यूज़ करते हैं, एंड आई होप यू हैव सीन दिस एरो नोटेशन अर्लियर। अगर आपने ये एरो नोटेशन पहले नहीं देखी हुई तो यू विल सी इन अ व्हाइल। यूजिंग द एरो नोटेशन you can access these all the variables and all the functions associated with P, ठीक है। and how do you actually do that? आपको पता है कि P के अंदर x और y हैं, दो वेरिएबल्स हैं, तो ptr arrow x will now point to or will get the access to x, जो x जो आपके पास पड़ा हुआ है, ये अब पॉइंटर जो है जो आपने ptr स्ट्रक्ट को पॉइंट कर रहा था, अब नाउ इट्स एक्चुअली द सेम पॉइंटर इज एक्चुअली एक्सेसिंग द वैल्यूज। और आप दो तरह की वैल्यूज, यू कैन एक्सेस टू टाइप्स। आप उसकी मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं और उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। आप मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं और आप उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो जब आप बेसिकली पॉइंटर यूज कर रहे हैं और उसमें एरो नोटेशन यूज कर रहे हैं, यू विल सी इन अ व्हाइल कि एरो नोटेशन करता क्या है, ठीक है। सो क्या वो उसकी मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर रहा है या उसकी वैल्यू को एक्सेस कर रहा है? विल कम टू दिस पॉइंट इन अ व्हाइल, ठीक है। सो इसको हम अभी देखते हैं, लेकिन दिस इज हाउ यू कैन एक्सेस, ठीक है। और अगर आपने वाई को करना है एक्सेस, तो आप वाई की एक्सेस जो है वो इस तरीके से देख सकते हैं, ptr एरो वाई, ठीक है। अब जो क्वेश्चन चैट में भी पूछा जा रहा है कि क्या ये मेमोरी लोकेशन ऑफ एक्स को एक्सेस कर रहा है या वैल्यू ऑफ एक्स को एक्सेस कर रहा है, ठीक है। सो वी विल सी दैट इन अ व्हाइल, डोंट वरी अबाउट इट, I'll just come to this point. Okay, so it would print something. अच्छा, so now let's see कि आपने किसी फंक्शन को एक्सेस करना है थ्रू द पॉइंटर। सो अभी we'll see an example. Just hold on to your questions for a while. I'll clarify कि ये मेमोरी को एक्सेस कर रहा है या उसकी वैल्यू को एक्सेस कर रहा है, ठीक है। मीनवाइल यू कैन थिंक अबाउट इट कि ये क्या कर रहा होगा। अच्छा, हाउ टू एक्सेस? आपको पता है कि फंक्शंस को कैसे एक्सेस करें। फंक्शंस को एक्सेस बिल्कुल एरो नोटेशन के थ्रू आप कर सकते हैं। आप सिंपली डॉट की जगह, डॉट नोटेशन की जगह आप एरो नोटेशन यूज कर सकते हैं।
and you can call a function. For example, here is a setter function that is being called that sets the value of x. ठीक है, so ptr arrow set x और ब्रैकेट में आपने आर्गुमेंट दिया है set x. लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था what was set x. Set x was setting the value of x. ठीक है, and now it's setting the value of x equals to 99. तो x की वैल्यू को 99 के बराबर सेट कर देगा. so set x is a function. तो ना सिर्फ आप वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं बल्कि आप फंक्शन को भी थ्रू द सेम म्यूटेशन आप एक्सेस कर सकते हैं, विच इज द एरो म्यूटेशन. सेम इज द केस विद सेट y. ptr एरो म्यूटेशन सेट y जो है वो स्ट्रेट अवे फंक्शन सेट y को कॉल करेगा और वो जो भी उसमें एग्जीक्यूट आपने करना है, जैसे यहाँ पे आप y की वैल्यू को सेट कर रहे हैं 1818, तो इट विल सेट द वैल्यू ऑफ y equals to 1880. Okay, and now you can print this value and then print the value of y. ठीक है, अच्छा जी. So this is how you can simply write down. अच्छा, we need to initialize point p. जी जी बिल्कुल, you have to initialize point p before that. ठीक है जी, राइट. ओके, सो गेटर फंक्शन भी आप इसी तरह से कर सकते हैं. ठीक है, गेटर फंक्शंस को भी आप इसी तरह से यूजिंग द पॉइंटर आप पॉइंट कर सकते हैं. ठीक है जी. तो दिस इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट सॉर्ट ऑफ a notation that has been done in this particular case. ठीक है जी. Okay, let's just see an example here. और इस example में अब what is this example doing? This example is basically using we are defining a function here. ठीक है, function here, and that function is primarily doing what? That function is taking in struct pointer as an argument. So अगर आप इसमें इस part को देखें, right, this part here, what is this part doing? This is the argument to the print function, and this argument to the print function is primarily what? It's actually a pointer being defined in this particular case. उसकी declaration है, initialization उसकी declaration of this pointer है. So inventory static part is basically, so now what is this demanding? This is demanding कि ये जो print function है, this print function is primarily doing what? This print function is taking pointer as an argument. ठीक है, और यहाँ पे आप इसके अंदर प्रिंट स्टेटमेंट अगर आप देखें, ये जो प्रिंट स्टेटमेंट्स आपने सी आउट के साथ लिखी हुई हैं, this print statements are using another alternate way of accessing the variables. ठीक है, तो alternate way of accessing the variable is given. एक तो arrow notation से आप कर सकते हैं. अगर आप arrow notation से नहीं कर रहे, आप dot notation use कर रहे हैं, तो then it has to be in this way. So you have an opening parenthesis and a closing parenthesis, and within that you have this star thing followed by the name of the pointer. So यहाँ पे name of the pointer is part. तो bracket static part dot prints आप price आप ये कर सकते हैं, या आप इस सारे की जगह आप part arrow notation price आप वो कर सकते हैं. So this is primarily an alternate way of accessing the variables using a pointer, right? So part here is a pointer. Yes, part here is a pointer. You have rightly said that. Part is the name of the pointer that is actually being defined. The type of this pointer is inventory, and inventory is a struct which has been defined in this part of the program. ठीक है, और इसके दो कंस्ट्रक्टर्स हैं, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है और एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, और यहाँ पे हमने तो उसके तीन वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए. आप ये स्टैटिक पार्ट ब्रैकेट्स विद इन ब्रैकेट्स आप इसको भी यूज कर सकते हैं, या आप पार्ट एरो न्यूटेशन पॉइंटिंग टू अ फंक्शन और टू अ वेरिएबल
आप वो भी नोटेशन यूज़ कर सकते हैं। एरो नोटेशन आपने पहले यूज़ किया है, यहाँ पे आप डॉट नोटेशन यूज़ कर रहे हैं, तो डॉट नोटेशन यूज़ करने के लिए भी आपको जो है इस केस के अंदर स्टेरिक पार्ट विद इन ब्रैकेट्स आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, राइट। अच्छा, ओके उमर, आपका क्वेश्चन ये है कि आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाई यू आर पासिंग द पॉइंटर एज अ पैरामीटर टू द प्रिंट फंक्शन, कैन यू एक्सप्लेन? अच्छा, व्हाई वी आर यूजिंग दिस, बिकॉज आप या तो फंक्शन कॉल आप कर सकते हैं यूजिंग द आर्गुमेंट बाय डायरेक्टली पासिंग ऑन द वैल्यू एज एन आर्गुमेंट, और दूसरा ये है कि आप पॉइंटर को भी पास कर सकते हैं इफ यू वांट टू कॉल इट बाय रेफरेंस, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, राइट? तो so this is an alternate way of doing it if you are using pointers. let's say कि आप वैल्यू से उसको, जैसे फंक्शंस के अंदर आप नॉर्मली करते हैं, आप आर्गुमेंट पास करते हैं और वो आर्गुमेंट आप जो है वो या तो रियल वैल्यू उसकी वेरिएबल नेम के साथ करते हैं या फिर आप पॉइंटर के साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी दिस इज जस्ट टू इलिस्ट्रेट कि आप फंक्शन के अंदर जो है वो पॉइंटर आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं, ठीक है जी। Why are you using pointers when you can simply use the dot notation? Fine, there are, as I told you earlier, there are alternate ways of solving a problem. If you have defined a pointer, तो उस सूरत में you can use a single pointer to actually point to all the variables. आप dot notation से भी कर सकते हैं, you can do that. लेकिन most of the time when things become complex, उस सूरत के अंदर आपको जो है वो dot notation के बजाय if you are using pointer, and because you already know कि pointer की advantages क्या हैं, so if you are using pointers, then you can have to change the way in which this has been accessed, ठीक है जी। तो specific reasons of using pointers, I guess जब आपने pointers पढ़े थे earlier, तो उस वक्त रीज़न फॉर यूजिंग पॉइंटर्स क्लियर है, एग्जैक्टली द सेम रीजंस जो कि स्टैंडर्ड आप यूज़ करते हैं, फॉर एग्जैक्टली दोज रीजंस आप यहाँ पे भी पॉइंटर्स को यूज़ कर सकते हैं। बट एज फार एज द एक्सेस इज कंसर्न, तो एक्सेस आप डॉट नोटेशन से भी कर सकते हैं और पॉइंटर से भी कर सकते हैं, राइट? राइट, सो दिस इज लाइक an alternate which I've just given you. आप arrow notation से भी कर सकते हैं और आप इस notation से भी कर सकते हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताई, ठीक है? हाँ जी, so I've just written it, Mustafa. So this is using the arrow notation, ठीक है? I hope अब आपको शायद clear हो जाना चाहिए कि ये value return करेगा arrow notation या ये memory location करेगा, ठीक है? Right? If there are any questions so far, just let me know. Acha, so okay, so this is what your main program could look like. So ये तो आपका struct की definition आ गई, आपकी struct की definition आ गई। Main program के अंदर आपने एक inventory का instance define किया, ठीक है? और अब आपने print call करना, तो print आप by reference भी call कर सकते हैं, और अब आपको by reference ही call करना पड़ेगा। The reason for that is कि print function अब आपके पास ये pointer argument लेना चाहिए, ठीक है? अच्छा, रिमेंबर यहाँ पे जो डेफिनेशन हमने दी है इन्वेंट्री माई पार्ट, वी हैवंट डिफाइंड अ पॉइंटर हियर, ठीक है? वी आर यूजिंग m% टू पास ऑन द मेमोरी लोकेशन टू द प्रिंट, और फिर बाकी काम जो है वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर होगा जो भी, ठीक? सो यू कैन एक्चुअली यूज इट डायरेक्टली अगर आप माई पार्ट डॉट प्रिंट करना चाहते हैं, और उस सूरत में आपका आर्गुमेंट जो है वो इस तरह का आर्गुमेंट आप पास नहीं करेंगे, उसमें आप इसको यू रियली डोंट नीड टू पुट एनी आर्गुमेंट देयर, ठीक है? आप स्ट्रेट अवे भी कॉल कर सकते हैं, आप थ्रू पॉइंटर भी कॉल कर सकते हैं, ओके? सो जस्ट टू रिकैप,
आप ये दोनों दो तरीके हैं जिससे आप फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं ऑफ द स्ट्रक्ट. वन इज यूजिंग द स्टैटिक एंड द डॉट म्यूटेशन टुगेदर, द अदर वन इज द एरर म्यूटेशन. ठीक है, आप दोनों तरीक़ों से जो है वो इसको कॉल कर सकते हैं. राइट. Okay, so for simpler problems, Abdullah, you are right. It might seem a little complex and less efficient. लेकिन for complex problems, जिसमें आप pointer का efficient use कर सकते हैं, उस केस में it becomes more efficient. ठीक है. So because we are just introducing the concepts here, therefore we are using simpler problems, right? We can declare that. ठीक है. लेकिन पिछले एग्जाम्पल में जो मैंने आपको बताया और उसमें हमने उसको डिक्लेयर नहीं किया हुआ. ठीक है, उसमें हमने सिंपल इंस्टेंस को डिक्लेयर किया है. आई विल शो यू एग्जांपल जिसमें एक कंप्लीट एग्जांपल जिसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो आ जाएंगी. जो आपने भी बात की कि जब आप पॉइंटर को यूज़ करेंगे तो आपको पॉइंटर पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा. ठीक है. पिछले एग्जांपल में हमने सिंपल बाय रेफरेंस फंक्शन को कॉल किया, तो इसलिए अलग से पॉइंटर को हमने डिफाइन नहीं किया. ठीक है. सो I'll just show you an example for that in a while. ठीक है. Okay. So here is primarily the use of the setters. आप setters को भी use कर सकते हैं. और अब अगर आप pointers के through सेट करना चाह रहे हैं वैल्यूज़, ठीक है, तो उस सूरत में आपने इस तरह का आपका सेटर फंक्शन जो है वो भी कुछ इस तरह से नज़र आएगा जैसे यहाँ पे स्लाइड में नज़र आ रहा है. ठीक है. तो इस सेटर फंक्शन के अंदर इफ़ यू कैन हैव अ लुक एट दिस सेटर फंक्शन, यू विल सी कि दिस सेटर फंक्शन इज एक्चुअली यूजिंग pointer argument by reference. तो x here is primarily representing a pointer. और फिर x जो है वो पॉइंट कर रहा है पार्ट नंबर को, x पॉइंट कर रहा है कॉस्ट को, x पॉइंट कर रहा है प्राइस को. here you can actually set the values. ठीक है. तो अगर आप पॉइंटर नोटेशन यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको सेटर की डेफिनेशंस भी जो है ना वो भी चेंज करनी पड़ेगी अकॉर्डिंगली. ठीक है. एंड हाउ कैन यू एक्चुअली यूज़ इट? दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ इट इन द मेन प्रोग्राम. सो मेन प्रोग्राम के अंदर पहले आप एक आपको इंस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री डिफाइन आपने किया. ठीक है. दूसरे केस में आपने दूसरी लाइन के अंदर क्या किया, एक पॉइंटर आपने डिफाइन किया जो कि उस इंस्टेंस को पॉइंट कर रहा है. तो पॉइंटर इज माई पार्ट वन एंड इट्स पॉइंटिंग टू in1 instance 1 or in1 which is an instance of inventory, and then you are actually using this pointer my part 1 to set the values. ठीक है, to set the values इस case. or then you can actually use same my part 1 to print the values which are present. आप set values कर लें और फिर print values कर लें. ठीक है. अच्छा, जो क्वेश्चन है अजबा का वो ये है कि वेयर इज दिस पॉइंटर x डिक्लेयर्ड इन दिस एग्जांपल. अच्छा, पॉइंटर x इज डिक्लेयर्ड. अच्छा, मैं आपको वेयर इज दिस पॉइंटर x डिक्लेयर्ड इन दिस एग्जांपल. लेट मी जस्ट शो. राइट. सो हियर यहाँ पे आप उसको डिक्लेयर कर रहे हैं. इफ यू लुक एट दिस is the declaration of the x. Okay, so what is this saying? This is saying that x is a pointer of type inventory. ठीक है. तो आपने आर्गुमेंट जब आपने इसका डिफाइन किया है सेटर फंक्शन के अंदर, आप उसी आर्गुमेंट के अंदर ही इसको डिफाइन कर रहे हैं. तो इन्वेंट्री स्टैटिक x is the complete definition or the declaration of this x, right? तो यहाँ पे आप इसको कर रहे हैं. दिस इज इनसाइड द स्ट्रक्ट. तो स्ट्रक्ट के अंदर आप उसको x कर लें, y कर लें, z कर लें, कोई भी कर लें, लेकिन आपने उसकी टाइप डिफाइन करनी है. ठीक है. जब आप इस फंक्शन को कॉल करें, फर्ज करें सेट वैल्यू को कॉल करेंगे माई पार्ट 1 के साथ, तो माई पार्ट 1 देन विल प्राइमरीली बी दिस होल थिंग. तो x here will be actually bound to my part 1. ठीक है. तो दिस इज जस्ट फंक्शन कॉल. जब आप फंक्शन डिफाइन कर रहे होते हैं ना, उसके आर्गुमेंट में आप कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं.
लेकिन जब आप फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो उसमें आप अपना रियल आर्गुमेंट जिसके अगेंस्ट आप वो फंक्शन कॉल करना चाहते हैं आप उसको पास ऑन करते हैं। तो दिस इज इन योर मेन प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पे मैंने माई पार्ट को डिफाइन किया हुआ है, एंड व्हेन आई से सेट वैल्यू माई पार्ट, तो सेट वैल्यू इज एक्सपेक्टिंग व्हाट, इट्स एक्सपेक्टिंग अ पॉइंटर ऑफ टाइप इन्वेंट्री। ठीक है, तो माई पार्ट इज अ पॉइंटर ऑफ टाइप इन्वेंट्री which satisfies this definition. Therefore, x would automatically get bound to my part 1. तो जो x है अब वो my part 1 बन जाएगा when I will be calling this in my main program. एक्सक्यूज मी सर। Yes. सर अगर हम सेट वैल्यूज m% in 1 करें तो फिर चल जाएगा? क्या करें? my part 1 arrow set हाँ. values m% in 1. आप अगर m% यूज कर रहे हैं ना तो वो बाय रेफरेंस आप उसको कॉल कर रहे हैं, बाय रेफरेंस अगर आप कॉल कर रहे हैं तो दैट इज आल्सो फाइन। ठीक, बाय रेफरेंस भी आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन इट हैज टू बी एन इंस्टेंस ऑफ इन्वेंटरी। नहीं सर, अगर हम सेट जिधर माई पार्ट एरो मेन प्रोग्राम में सेट वैल्यूज ब्रैकेट में हम m% in 1 करें तो चल जाएगा प्रोग्राम? m% in 1 जी। हाँ, अगर हम मेन में करें बिल्कुल, यहाँ पे उसे तो मेमोरी लोकेशन चाहिए ना, तो वो उसी मेमोरी लोकेशन पे चलेगा। m% आगे जो भी आपने लिखा है इट शुड वर्क। ठीक है, उसमें कोई ऐसा मसला नजर नहीं आ रहा, क्योंकि दो तरीकों से आप कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट पॉइंटर पास करें या बाय रेफरेंस पास करें। तो जब मैं m% यूज कर रहा हूँ दैट इज बाय रेफरेंस। ठीक है ना, तो बोथ ऑफ दीज थिंग्स कुड वर्क। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिस इज लाइक से अ मोर नीटर वे ऑफ कॉलिंग इट। तो या तो आप डायरेक्ट पॉइंटर पास कर दें जैसे यहाँ पे हमने पॉइंटर पास किया, या आप जैसे पिछले एग्जांपल में हमने किया था कि m% के साथ भी आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आपको कुछ चेंज करना पड़ेगा प्रोग्राम। अच्छा सर एक्सक्यूज मी जी सर, ये मेन प्रोग्राम का जो सेकंड लास्ट लाइन है इसमें अगर आप सेट वैल्यूज वाला फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो फिर आपने माई पार्ट 1 एरो शुरू में क्यों लिखा है? डायरेक्ट सेट वैल्यूज ब्रैकेट माई पार्ट 1 पे एंड नहीं कर सकते? नहीं, वो इसलिए क्योंकि माई पार्ट इज अ पॉइंटर विच इज पॉइंटिंग टू एन इंस्टेंस in1। तो अब अगर मैंने पॉइंटर को यूज करना है टू कॉल अ फंक्शन तो फिर मुझे ये एरो नोटेशन यूज करनी पड़ेगी, या वो स्टैटिक माई पार्ट 1 डॉट वाली नोटेशन यूज करनी। अच्छा, माई पार्ट इज अ पॉइंटर, माई पार्ट 1 इज अ पॉइंटर। ठीक है। ठीक है ना, इसलिए आप वो डायरेक्ट उसको नहीं करेंगे, आपको पहले बताना ठीक है पड़ेगा कि सर। ये जो मेरा पॉइंटर है ना ये किस फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो द फर्स्ट पार्ट इज कॉलिंग द फंक्शन, द सेकंड पार्ट जो कि ब्रैकेट में आ रहा है दैट इज एक्चुअली पासिंग द आर्गुमेंट टू द फंक्शन। ठीक है सर। Okay. Okay. So let's just see we'll see an example in a while, inshallah, जिसमें I'll show you कि किस तरह से ये चीज़ काम करती है, for and hopefully this would help you understand। और जैसे मैं बाकी लेक्चर्स के साथ भी कर रहा हूँ, एंड आई होप कि आप उन शॉर्टर वीडियोस को भी आप देख रहे होंगे जो कि मैं अपलोड कर रहा हूँ एट द यूट्यूब चैनल। उसके अंदर आई एम जस्ट पोस्टिंग सम स्मॉलर वीडियोस जिसमें इसकी कोडिंग पार्ट जो है ना आई एक्चुअली शो दैट। आई होप दैट वुड बी यूजफुल, और आप उसके ऊपर अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इफ़ यू वांट सम इम्प्रूवमेंट्स इन दोज वीडियोस जो कि कोडिंग वाली हैं। आई थिंक that would be quite important। ठीक है, तो you are right जी। I mean it would seem कि ये unnecessary complexity हम ऐड कर रहे हैं, लेकिन when things become really complex और जब आपको memory allocations जो है ना वो आपने उनका भी ख्याल करना है, और आपने प्रोग्राम ऐसा लिखना है जिसको आपने memory wise और time wise optimize करना है, तो फिर इस तरह की चीज़ें जो है ना वो यूज़फुल होती हैं। सिंपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आपको ये लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो रही हैं, लेकिन once you will master the art then you will know कि मेमोरी लीक्स वगैरह और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनको आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो क्या सिंपल डॉट नोटेशन विदाउट यूजिंग पॉइंटर्स क्या वो यूज़फुल है या नहीं है, एंड हाउ डज इट कंपेयर टू पॉइंटर्स, that would really you'll really understand that when you'll
do much more complex sort of programming, ठीक है, तो वहाँ पे चीज़ें आपको जो हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगी होपफुली, ठीक है। ओके, सो सर जी जी जी, सेटएक्स का फंक्शन जो यूज सॉरी आवाज़ नहीं आ रही है, ज़रा ऊंचा बोलिए। सर जो हमने पहले सेटएक्स का फंक्शन यूज किया था जब हमने ये जी पॉइंटर्स नहीं पढ़े थे, तब हम आर्ग्यूमेंट पास कर रहे थे ताकि वो x जो है वो उस आर्ग्यूमेंट के इक्वल उस वैल्यू को, हाँ वैल्यू पास कर, जी। जी तो सर अब अगर हम ये वाला सेटर फंक्शन यूज कर रहे हैं जो वॉइड वाला है, तो उसमें हम आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं क्या? क्योंकि जी यहाँ पर तो हम बिल्कुल, फिक्स वैल्यू से उसको इक्वेट कर रहे हैं, राइट? यहाँ से फिक्स वैल्यू पे कर सकते हैं और उसको आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है सर, थैंक दैट्स यू नॉट सर। एन इशू एट ऑल। अच्छा, ये वॉइड इसलिए है क्योंकि इट्स नॉट रिटर्निंग एनीथिंग, ठीक है। सो प्राइमरीली हम इसको वॉइड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देयर इजंट एनी नेसेसिटी हियर कि इट वुड रिटर्न अ पर्टिकुलर टाइप, ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स एक्चुअली। अच्छा, okay, so let's just extend our discussion to a bit to the next level by defining the scope variables, scope of the structs and the variables that are used in struct, ठीक है, इसको हम access modifiers कहते हैं। और to limit the scope of the variables, और स्कोप ऑफ द वेरिएबल्स का मतलब आपको पता ही है कि ग्लोबल स्कोप ऑफ द वेरिएबल वुड मीन कि यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम विद इन द प्रोग्राम। कुछ में आप उसको लिमिट कर सकते हैं, कुछ वेरिएबल्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ फंक्शन के अंदर ही एक्सेस हो सकते हैं और फंक्शन से बाहर वो वेरिएबल्स एक्सेस ही नहीं हो सकते, ठीक है। सो यू एक्चुअली कैन लिमिट द स्कोप ऑफ द वेरिएबल्स डिफाइंड इन स्ट्रक्ट by using some keywords which are called access modifiers. अच्छा, एक्सेस मॉडिफायर्स में तीन प्राइमरीली कीवर्ड्स यूज होते हैं, यहाँ पे सिर्फ मैं दो की बात कर रहा हूँ और तीसरा हम उस वक्त करेंगे जब हम क्लासेस की तरफ मूव करेंगे। वन इज, इफ यू लुक एट द टाइटल ऑफ द स्लाइड, वन इज द कीवर्ड व्हिच इज कॉल्ड पब्लिक, ठीक है। द सेकंड कीवर्ड इज प्राइवेट। पब्लिक का मतलब ये होगा ग्लोबल एक्सेस, दैट मीन्स कि कोई ऐसी चीज जो कि आपने पब्लिक कर दी है दैट इज एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर विद इन द प्रोग्राम। आप स्ट्रक्ट से बाहर उसे एक्सेस कर लें, स्ट्रक्ट के अंदर एक्सेस कर लें, मेन प्रोग्राम से कर लें, किसी और फंक्शन के अंदर एक्सेस कर लें, इट विल बी एक्सेसिबल, ठीक है। तो दैट इज व्हाट पब्लिक इज। अच्छा, यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि बाय डिफॉल्ट जब भी आप स्ट्रक्ट डिफाइन करेंगे, बाय डिफॉल्ट everything that you define in a struct is public, ठीक है। You can access it from anywhere in the program unless you use a keyword which is called private here, and here is an example of in the program जिसमें आपने private का keyword use किया, ठीक है। Private keyword is simply the word private followed by colon, और इसके बाद जो भी आप वेरिएबल डिफाइन करेंगे वो वेरिएबल जो होगा, that variable will be treated as a private variable. Private variable का मतलब ये है कि इस वेरिएबल को जो कि प्राइवेट है आप स्ट्रक्ट के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, स्ट्रक्ट से बाहर नहीं आप उसको एक्सेस कर सकते, ठीक है जी। अच्छा, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। हाँ, आप बात ठीक कर रहे हैं कि आप पूरे के पूरे स्ट्रक्ट को भी प्राइवेट बना सकते हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप उसमें हर वेरिएबल को, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया हुआ है which is f, the name of this function is f, it returns an integer a। अब इस फंक्शन के ऊपर मैंने कोई कीवर्ड यूज नहीं किया या कोई एक्सेस मॉडिफायर यूज नहीं किया, मैंने यहाँ पे ना पब्लिक लिखा है ना प्राइवेट लिखा है, तो बाय डिफॉल्ट दिस इज प्राइवेट, सॉरी दिस इज पब्लिक। हाँ, अगर मैं इससे पहले प्राइवेट लिख दूं, ठीक है, इससे पहले अगर मैं प्राइवेट लिख दूं तो ये फंक्शन भी प्राइवेट हो जाएगा। दैट वुड मीन कि मैं स्ट्रक्ट के अंदर तो इसे किसी और जगह यूज कर सकता हूँ, लेकिन मेन प्रोग्राम से अगर मैं डायरेक्टली कॉल करने की कोशिश करूंगा तो आई विल नॉट बी एबल टू कॉल इट, ठीक है। सो यस, इट्स एनालॉगस टू लोकल वेरिएबल्स इन द ब्लॉक ऑफ स्ट्रक्ट। शर्जील, यू हैव एक्चुअली पॉइंटेड आउट करेक्टली, ठीक है। तो प्राइवेट जब भी मैं लिख देता हूँ दैट मीन्स कि इट्स नॉट एक्सेसिबल
from anywhere else except within the struct. अच्छा, जहाँ पे मैंने इंटीजर a की वैल्यू सेट कर दी 10 के बराबर एंड आई हैव सेट कि दिस इज प्राइवेट, तो स्ट्रक्ट के अंदर अगर कोई और फंक्शन है जो कि a को यूज कर रहा है इट विल बी फाइन, लेकिन अगर मेन से मैं डायरेक्टली एक्सेस करने की कोशिश करूंगा a को तो आई विल नॉट बी एबल टू एक्सेस दैट। तो f जो है, f फंक्शन जो है वो तो a को एक्सेस कर सकता है क्योंकि ये स्ट्रक्ट का हिस्सा है f, लेकिन मेन प्रोग्राम में अगर जैसे ये सी आउट स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ये सी आउट स्टेटमेंट मेन के अंदर अगर मैं लिखता हूँ स्मॉल y इज एन इंस्टेंस ऑफ कैपिटल Y और y डॉट a में अगर करता हूँ तो दिस वुड गिव मी एन एरर, ठीक है, दिस विल गिव मी एन एरर, ठीक है, दिस विल गिव मी एन एरर, आई कैन नॉट एक्सेस a डायरेक्टली फ्रॉम द मेन प्रोग्राम, ठीक है, लेकिन I can always access this variable through a function which is present in struct, and that function has to be public. Only then I can access it. ठीक है, तो जैसे अगर यहाँ पे लिखा हुआ है what is this f doing? F is returning the value of a. ठीक है, f is returning the value of a. तो अगर मैं इस फंक्शन f को कॉल करता हूँ y dot f, तो this function can be called because it is public. अब ये फंक्शन कर क्या रहा है? ये फंक्शन कर ये रहा है कि ये a की वैल्यू को रिटर्न कर, so I'll get the value of a through this call. So through the second call I can get the value of a, but through the first call I cannot get the value of a, right? इसी तरह से आप functions को भी जो है वो private कर सकते हैं. When you are making functions private, that means that you can only call those functions within struct. आप main program से उस function को call नहीं कर, ठीक है. So if I make f private, this will also give me an error. ये भी error मुझे देगा. Right? This would also give me an error. So this is how you can actually limit the scope of variables. आप उसको local scope उसका कर सकते हैं by using this keyword which is private, and this private public, and the third one is called protected. So we'll come to that discussion in detail when we come to the discussion on classes. And these are called access modifiers. So you can use access modifiers to primarily limit the scope of the variables, right? I hope this is clear. Okay. Sir, I have a question. Yes, go ahead. सर अगर हम स्ट्रक्ट को मेन में डिफाइन करते हैं फिर भी हमारा जो प्राइवेट वेरिएबल है वो प्राइवेट ही रहेगा? स्ट्रक्ट को मेन में डिफाइन करते हैं, हम स्ट्रक्ट को मेन में डिफाइन कर सकते हैं. हाँ, आप जहाँ पे भी करेंगे प्राइवेट का मतलब ये होगा कि विद इन दैट स्ट्रक्ट ब्लॉक आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, आउटसाइड द स्ट्रक्ट ब्लॉक आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते. सही, जहाँ मर्जी डिफाइन कर दें उसे, ठीक है. जब आपने कह दिया कि ये वेरिएबल प्राइवेट है या ये फंक्शन प्राइवेट है, तो दैट वुड मीन कि आप स्ट्रक्ट ब्लॉक के अंदर उसके साथ उसको ले सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्ट ब्लॉक से बाहर आप उसको नहीं कर सकते, चाहे आप उसे मेन के अंदर डिफाइन करें या मेन से बाहर डिफाइन. लेकिन जब वो प्राइवेट है दैट मीन्स के ये जो स्ट्रक्ट के दो ब्रैकेट्स हैं ना, ये जो एक ये ब्रैकेट है और एक ये ब्रैकेट है, इसके अंदर आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, इससे बाहर नहीं, राइट? Okay. So let's just see with the help of a simple example. जी जहांजेब, आपका कोई क्वेश्चन है तो? जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था सर, आप प्रीवियस स्लाइड में जा सकते हैं प्लीज? जी ओके, आप क्वेश्चन बताइए. सर मुझे ये जी Okay. जो लास्ट स्लाइड जो थी बिल्कुल जी, जिसमें वो हम प्राइवेट कर रहे थे सर, इसमें अगर हमें मल्टीपल वेरिएबल्स प्राइवेट करने हो तो हम उनको किस तरह बाउंड करेंगे? मतलब जैसे फंक्शंस के हम कंटेंट्स को कर्ली ब्रैकेट से
बाउंड करते हैं, तो प्राइवेट वाले वेरिएबल्स को कैसे अच्छा, करेंगे? इसके दो तरीके आप दो इसका तरीका ये है कि आप जर्नली जब आप प्राइवेट डिफाइन कर रहे हैं ना, तो आप प्राइवेट स्टार्ट ऑफ द राइट एट द स्टार्ट आप प्राइवेट डिफाइन करें, ठीक है। तो आप प्राइवेट कीवर्ड लिख के उसके बाद जितने वेरिएबल्स आप लिखेंगे वो सब के सब प्राइवेट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ही उसका कीवर्ड पब्लिक आप करेंगे, ठीक है, तो फिर आपको पब्लिक का कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप वो पब्लिक का कीवर्ड यूज़ करेंगे तो उसके नीचे जितने भी आएंगे वो सब पब्लिक हो जाएंगे, ठीक है। अब इस डिक्लेरेशन के अंदर इसके नीचे मैं int p लिख दूं, int c लिख दूं या float c d लिख दूं या जो कुछ भी लिखूं, everything will be considered private after this keyword private, ठीक है। थैंक यू सर। तो you have to be careful in this case, आप कीवर्ड्स एक्सप्लिसिटली यूज करें। जैसे इस केस के अंदर अगर मैं प्राइवेट के बाद कोई वेरिएबल डिफाइन करता हूं जो कि मैं पब्लिक रखना चाहता हूं, तो आई विल हैव टू यूज दिस कीवर्ड पब्लिक, या मैं उसे प्राइवेट से पहले डिफाइन करता हूं, ठीक है। Okay, let's just do an example here. So you can all see this. Okay, so here is an example. यहाँ पे what we have done is कि this is same example जो कि मैंने पहले आपको दिखाया है. We are defining a struct y और इसमें एक public variable है which is int b और एक public function है which is f which is returning the value of a, और उसके बाद एक private variable है, this is the keyword private, और ये private variable जो है that is a and that has been assigned a value of 10. Okay, so इस case में if I'll try to access a directly and if I just compile this, it should give me an error, ठीक है। So it gives me an error, ठीक है। It says that declared private here, ठीक है। So it has been declared private, therefore you cannot directly access it, ठीक है। Okay, so you can't really access that, लेकिन public को definitely I can access this, ठीक है। public को मैं access कर सकता हूँ and you can see कि ये जो पहली line यहाँ पे print हुई है, this first line, I'll just block all the others ताकि वो चीज़ें कुछ clear हो जाए। Okay, and I'll just execute this. Okay, so you can see that you can access B directly because that's actually public. पहले वाला आप नहीं कर सकते थे A क्योंकि that's private, लेकिन through this function F you can access this variable A, and now it says कि okay, A is 10 because that value has been accessed through a function and function is public, ठीक है। तो ये आ जाता है। So this is Sir? yes. Sir, the function f is defined before we've actually declared the variable a, int a is equal to 10. So, so how does the function? How can the function? I think ideally what should happen is कि आपको a को पहले define करना चाहिए, ठीक है। लेकिन इस केस में you have just seen कि it works perfectly fine, उसमें कोई ऐसा issue नहीं है, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है, मसला नहीं है। It would generally what would happen is कि सबसे पहले जब आप struct के अंदर जब आप access modifiers जब आप चलाते हैं तो access modifiers जो होते हैं उसमें भी preferences आपके पास आती हैं, यानी there are certain things, सबसे पहले you know कि there is a preference to a particular statement, assignment statements हैं, दूसरी statements हैं, declaration statements हैं, ठीक है। तो they'll always come this. Ideally जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन इस केस में you can just see it really doesn't make any difference in this particular case. Okay, sir. And secondly, sir, why are we initializing the variables in the struct to 10 and 5? अच्छा, I mean you can initialize them separately as well, लेकिन आप scene के through भी initialize कर सकते हैं, लेकिन just to make this example a simpler example, इसको
इनिशियलाइज भी उसी तरह से हम मेन के अंदर ही यानी स्ट्रक्ट के अंदर ही इनिशियलाइज कर सकते हैं, लेकिन देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन कि आप इसको लाजमी ऐसा करें, यू कैन डू इट एनी अदर वे यू वांट। ठीक है सर। यस, आप उसको सेटर के थ्रू सकते हैं। जी जी सर, मैंने कहना है अगर आप सेटर की बात करने लगता है, अगर आप प्राइवेट के अंदर प्राइवेट मॉडिफायर के अंदर एक सेटर फंक्शन डिफाइन करें जो ए की वैल्यू मॉडिफाई करता हो, तो फिर हम उसे कॉल कर सकते हैं मेन में। लेकिन प्राइवेट फंक्शन अगर होगा तो फिर उसके लिए भी प्रॉब्लम होगी। वो प्राइवेट फंक्शन किसी पब्लिक फंक्शन के अंदर अगर कॉल हो रहा है ना तो फिर आप कर सकते हैं। यानी मैंने सेटर फंक्शन प्राइवेट के अंदर डिफाइन कर दिया, ठीक है, लेकिन एफ के अंदर मैं उस प्राइवेट फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, देन इट्स फाइन। और मेन में मैं एफ को कॉल करूंगा, मैं प्राइवेट फंक्शन को कॉल नहीं करूंगा। मतलब आपने उसको डिफाइन प्राइवेट में कर दिया, लेकिन जो उसके मतलब आप वैल्यूज को आप पब्लिक में असाइन कर रहे हो, जैसे आपने ऊपर इधर एफ को किया। हाँ बिल्कुल ठीक है। अदरवाइज प्राइवेट फंक्शंस को आप जो है ना आउटसाइड द स्ट्रक्ट आप उसको एक्सेस कर ही नहीं सकते, राइट? सो अच्छा, नाउ कमिंग टू द पॉइंटर थिंग, आई विल जस्ट गो ओवर द स्टफ जो कि हमने पहले किया था। हियर वी आर डिफाइनिंग अ पॉइंटर ptr which is pointing to an instance small y, and this is of type capital Y, and capital Y is a struct that we have defined here. ठीक है जी। अच्छा, अब इस पॉइंटर को मैं अगर यूज कर रहा हूँ, अब यहाँ पे अगर आप ये देखें तो ptr points to a, अगर मैं इसको यूज कर रहा हूँ तो what should be the answer in this case? Okay, so if I run this, if I execute this, you will get an error. You will get an error straight away. क्यों? क्योंकि a तो प्राइवेट है ना, तो a को आप डायरेक्टली एक्सेस ही नहीं कर सकते, चाहे वो पॉइंटर के थ्रू करना चाहें या डायरेक्टली आप एक्सेस करना चाहें डॉट नोटेशन के थ्रू, वो एक्सेस ही नहीं होगा। बड़ी सिंपल सी रीजन है, क्योंकि a इज प्राइवेट, राइट? तो इसलिए ना पॉइंटर के थ्रू और ना ही डॉट नोटेशन के थ्रू, जैसे पहले इस लाइन के ऊपर हमने करने की कोशिश की थी, आप उसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस वुड डेफिनेटली गिव यू एन एरर, एंड यू हैव जस्ट सीन कि ये इट हैज एक्चुअली गिवन यू एन एरर। लेकिन b को आप इसको पॉइंटर के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, यू विल गेट द वैल्यू फॉर b, दिस इज परफेक्टली फाइन क्योंकि b इज पब्लिक। अच्छा, अब अगर b को मैं पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करना चाहता हूँ, ठीक है, तो वी हैव ऑलरेडी सीन कि दिस इज आल्सो अ म्यूटेशन जिसमें आप पॉइंटर को यूज कर सकते हैं, स्टैटिक डॉट म्यूटेशन, जिससे आप b को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सो थ्रू पॉइंटर अगर आप b को एक्सेस करना चाहते हैं थ्रू एन ऑल्टरनेट वे, सो दिस इज पॉसिबल, फाइन। हाँ, अगर अब मैं a को एक्सेस करना चाहता हूँ थ्रू पॉइंटर, बट आई विल हैव टू गिव अ कॉल टू अ फंक्शन f, आई कांट डायरेक्टली कॉल इट हियर। तो अब आप ये देख लेंगे कि a की वैल्यू जो है वो मेरे पास 10 आ गई है। Similarly, an alternative to this is also given here. You can also use that and see if that works or not. अच्छा, अब let's make it private. Let's say मैं यहाँ से इसको उठाता हूँ, या मैं अलग से डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक फंक्शन g डिफाइन करता हूँ, right? And I'll say कि यहाँ पे if I put let's say if I say return a, इसमें भी मैं return a करवाता हूँ। ठीक है, so how can I access this g? जी अब्दुल्ला खान, डोंट वरी। ठीक है, so how can I access this g here? ठीक है, just try to figure out that. I'll leave it here for you. What type of modification would be done in the program ताकि मैं g को access कर सकूं? I'll leave it here.
leave it as a small exercise for you. Just try to do this. Meanwhile, what we can do is कि हाँ जी को आप पब्लिक कर देंगे तो ठीक है, आप एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इफ जी रिमेन्स प्राइवेट तो फिर क्या होगा, ठीक है, तो उसको आप कैसे करेंगे? ठीक है जी, ओके. सो जस्ट हैव अ लुक एट दिस एंड सी कि ये किस तरह से काम होता है. Meanwhile, the TAs will, I don't know whether any of the TAs have joined in or not. अभी किसी ने ज्वाइन किया अभी? जी सर. Okay, Aisha. So you can take over from here, and you can give the instructions to the students about the quiz, and they had some worries about the time. You can try to satisfy them. If not, then you might also think of increasing the time if you think. Okay, if you think appropriate. Yeah, I'll leave it to you. Okay, ji. Okay, sir. Okay.